السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ گزشتہ کلاس سے ہم ریگولر ساؤنڈ اور ریگولر ساؤنڈ جسے ہم نے ایک نام دیا ہے، افعال پڑھ رہے ہیں۔ وہ افعال جس کی ساؤنڈ میں ادائیگی میں رکاوٹ آتی ہے، اور جو ریگولر ساؤنڈ ہے اس میں رکاوٹ نہیں آتی، تو ہم ریگولر ساؤنڈ والے پڑھ چکے ہیں۔ ریگولر کے جو ہے تھوڑے سے ہیں، اور ہم نے بھی حمزہ وہ الفاظ پڑھے تھے جس میں حمزہ آ جاتا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں حمزہ جو آنے کے بعد بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، سوائے رکاوٹ جب مظاہرہ پڑا، مظاہرہ متکلم واحد میں جا کر وہ آواز ہمیں حمزہ دو ایک جگہ آ گئے تھے، تو ہم نے وہاں فارمولہ لگایا۔ اسی طرح مضاف تھا، دوسرا ہم نے مضاف پڑھا تھا کہ ایک ہی قسم کے دو لفظ آ جائیں، صحیح دو لفظ صحیح، یعنی دال دال یا رے رے را را جسے کہتے ہیں، وہ ایک ساتھ آ جائے تو اس کو مضاف کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں جس کے فے کلمے پہ حرف علت آ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے محموز پڑھا تھا اور مضاف پڑھا تھا۔ مضاف کی اسپیلنگ میں عین فے ہے، مضاف ایک مضاف اور مضاف علیہ تھا جو مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا، وہ میم زے الف الف تھا، مضاف تھا۔ اچھا، تو یہ حرف علت جو ہے دو ہے، ایک واو اور ایک یا۔ ہر لفظ کو ہم جو جانچتے ہیں، ہم ہر فعل کے پہلے لفظ کو فے کلمہ کہتے ہیں، دوسرے لفظ کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے لفظ کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو فے کلمے پہ جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب وہ پہلا لفظ ہے، کسی بھی فعل کا وہ پہلا لفظ ہے۔ جب میں عین کلمہ کہوں تو کسی بھی فعل کا وہ دوسرا لفظ ہے، اور اگر میں لام کلمہ کہوں تو کسی بھی فعل کا وہ تیسرا لفظ ہے۔ تو فے کلمے پہ حرف علت، جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ حرف علت دو ہے، ایک واو ہے اور دوسرا یا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آتا فے کلمے پہ جب بھی آئے گا تو اس کو نام دیا گیا مثال، یعنی فے کلمے پہ جب بھی کوئی حرف علت آئے گا اسے مثال کہیں گے۔ اگر مثال واو کی ہوئی تو اسے کہیں گے مثال واوی، اور اگر مثال یا کی ہوگی تو مثال یائی کہا جائے گا۔ اب اس کے آنے سے بہت سی تبدیلی آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت سے آپ کو جیسے ماضی کا ہے، تو جب وہ مثال واوی میں جب ہم ماضی کے پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کی ادائیگی جو ساؤنڈ ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک ادا ہو جاتی ہے۔ جب ساؤنڈ ٹھیک ٹھیک ادا ہو جاتی ہے تو اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ جب تک ہماری ادائیگی میں کوئی رکاوٹ، کوئی ہنڈرنس آئے تو اس کو ہم صحیح کرنے کے لیے، اس کی عربی زبان یہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی ساؤنڈ کو ادائیگی میں کچھ مشکل آ رہی ہو تو اس ساؤنڈ کو صحیح کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہر لفظ، ہر جو فعل ہے وہ آسانی سے ادا ہو۔ آئیے ذرا سا وہ بتا دوں کہ جیسے مثال واوی ہے،
मिसाल फे कलमे पर वाव होता है। मिसाल वावी क्या है कि फे कलमे पर वाव होता है तो मिसाल वावी। मिसाल याई क्या होता है, फे कलमे पे ये होता है, या जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें जो मिसाल दी है, ये फे कलमे पे वाव है यहाँ पर, एन कलमे पे जीम है और लाम कलमे पे दाल है। ये एक फेल है। और ये दूसरा फेल है, वाव है, यानी फे कलमे पे वाव और एन कलमे पे एनी है, लाम कलमे पे यहाँ दाल लिखा हुआ है। दूसरा है वाव लाम दाल। तो वाव जो है फे कलमे पे है, एन कलमे पे लाम है और लाम कलमे पे दाल है। तो ये एक पहचान है जिससे हम पढ़ते हैं इस तरह। इसी तरह जब या कलमा की पहचान ले रहे हैं तो या कलमा जो है फे कलमे पे या है, सीन है, रे है। और दूसरा जो है फे कलमे पे या है, एन कलमे पे काफ है और लाम कलमे पे नून है। इसी तरह ये है फे कलमे पे ये है, एन कलमे पे हमजा है और लाम कलमे पे सीन है। तो ये हमें फे कलमे में हम इसी को इसलिए हमें इसमें फे कलमे पे वाव है इसलिए मिसाल वावी, और मिसाल ये फे कलमे पे ये है तो इसको मिसाल याही कहते हैं। तो इसमें आपको जो वावी है, मिसाल वावी है, उसमें एक सहूलत ये है कि आपको माजी मारूफ में कोई आपको ना साउंड, इरेगुलर साउंड कोई भी मिलेगी नहीं। यानी जिस साउंड की अदायगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको मैं अभी एक करके भी बताऊंगा, उसकी जब तक मिसाल नहीं करेंगे अपन आपको जहन में आएगा। हम माजी का जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे माजी मारूफ में कोई तब्दील नहीं है। इसी तरह माजी मजहूल में भी जब माजी मजहूल इसका बनाएंगे इसी तीन लफ्ज़ का, तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो दो जो हो गया माजी मारूफ और माजी मजहूल। तीसरा लफ्ज़ है मज़ारे मजहूल। मज़ारे मजहूल में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो आपका सारा क्लियर हो गया, माजी मारूफ, माजी मजहूल और माजी मज़ारे मजहूल। तो एक ही रह गया मज़ारे मारूफ। यानी मज़ारे मारूफ में जब ये मिसाल वावी आएगा तो वहाँ कुछ अदायगी हम उसको ऐसा कर, यानी हमारी जो साउंड है, गिरदान में साउंड, किसी भी सीखे में साउंड तब्दील हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारे पे हो। सलासी मुजर्रद में कम जगह पर ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, मिसाल वावी के जो चंद है सलासी मुजर्रद में, तो बाब, नसरा और यंसरू से कौन सा मिसाल वावी का? मिसाल वावी जो है सलासी मुजर्रद में, सलासी मुजर्रद जो है हमने पढ़ा था नसरा, यंसरू, ज़राबा, यज़रबू, फतह, यफ्तहू, कारुमा, यकरुमू, एक रह गया समिया, यस्मऊ। ठीक है। तो ये सलासी मुजर्रद के जो बाब थे उसमें नसरा और यंसरू जो है मिसाल वावी में इस्तेमाल नहीं होता है। इस बाब से कोई लफ्ज़ नहीं आता। अच्छा, इसलिए हमने जैसे पढ़ा कि माजी मारूफ, माजी मजहूल, मज़ारा मजहूल, ये तीनों में कोई साउंड की इरेगुलर नहीं होगा। तो किस में होगा? मज़ारे मारूफ में होगा। तो मिसाल वावी में तब्दीली सिर्फ मज़ारे मारूफ के 3 अबवाब में होती है। उसमें भी आपको सेग्रीगेट कर दिया गया। उसमें एक तो इसमें पता चल गया नसरा इंसुर तो होता ही नहीं। तो 3 बाब है, फतह, यफ्तहू, ज़राबा, यज़रबू, हसेबा, यहसबू। इसलिए ये हम इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये जब इसी की साउंड पे बनेगा कि जो उसका अगर हम बाब ज़राबा से लेंगे तो ज़राबा उसके मुताबिक यज़रबू, उसके हम इस साउंड पे इसको लाएंगे। हसेबा, यहसबू, इस साउंड पे लाएंगे, यहसबू को साइड पे। फतह, यफ्तहू, तो अगर कोई फतह का बाब फतह का होगा तो हम इस साउंड पे वो लफ्ज़ लाएंगे। ठीक है। तो हमने एक लफ्ज़ लिया है वाव हे बे, और इसको अगर हम माजी में कहेंगे तो वहाबा, यानी अता किया, उसने अता किया। वहाबा, वहाबा, वहाबू, वहाबत, वहाबता,
वहबना, ठीक है, वहबता, वहबतुमा, वहबतुम, वहबती, वहबतुमा, वहबतुम, वहबतू, वहबना। आपने देखा माजी के ग्राम में पढ़ा तो कोई इसमें वो नहीं हुआ। तो वहाबा से अब इसको अगर जब बनाएंगे, ये है बाप फतह का, तो जब आप इसको बनाएंगे यफ्तहू के वजन पे बनाएंगे, तो आप बनाया यो, जैसे ये है, ये पे जबर है, ये पे जबर है, पे सकून है तो वहां पे सकून है, और ते पे जबर है तो हे पे जबर है, हे पे पेश है तो बे पे वजह है। तो ये जो असल बनना चाहिए था वह यो हबू बनना था, यो हबू, यो साउंड यो निकलती या हबू। तो इसको ये साउंड जो है इसको देखा जाएगा कि इसको हज़फ करना है या पहले वाली से तब्दील करना है। लेकिन कायदा ये है कि जब भी वाव आएगा उस फे कलमे पे, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? अलामत मज़ारा, अलामत मज़ारा, ये यतान, ये ते अलिफ नून, चारों आना शुरू में जो आता है ये ज़मीर को शो करता है। तो ये वो है, ये फे कलमे पे वाव है, तो हम जो लिखा जाएगा इस वाव को गिरा दिया जाएगा, तो या हबू, इसको क्या पढ़ेंगे? या हबू। अब आप जब पढ़ रहे होंगे, कुरान पढ़ रहे होंगे, आप देखें या हबू कहाँ से आया। हमने तो वहाबा पढ़ा था, तो वहाबा का तो मज़ारा या हबू होना चाहिए था। वो असल में तालील के वक्त, तालील जब करते हैं तो उस वक्त उसको गिरा दिया हमने, इसलिए कि वो हमारी गिरदान आसानी से अदायगी हो सके। ठीक है। दूसरा था वजदा। आप देखें वजदा था, जराबा है, तो वजदा यो जदू होना चाहिए। ठीक है, यो जदू। तो नहीं, क्या से कह रहे हो तुम? फतह माजी है, हाँ, यफ्तह मुसारी है, मज़ार है, हाँ मज़ार, ये मज़ार है। अच्छा, तो ये वजादा का हमने किया। वजादा, इसका जब भी आप करेंगे मैं करके बताऊंगा वजादा की माजी की पूरी वो गर्दान, तो आप देखेंगे। तो इसका असूल के मुताबिक, असूल के मुताबिक इसका यौ जेदू बनना चाहिए था, यानी ज़राबा यज़रेबू यो जेदू, यज़रेबू यो जेदू बनना चाहिए था। लेकिन इसमें साउंड इर्रेगुलर हो जाएगी, यो जदू, यो जदा, यो जदू, यानी आप देखें इसको गर्दान करेंगे तो आपको अदायगी आपकी मुश्किल हो जाएगी। तो करते क्या है कि ये वाव जो है, वावी जो है, इसको हम गिरा देते हैं। मिसाल वावी का वाव को हम गिरा देते हैं। या जदू, या जदू माने वो पाता है या पाएगा। ठीक है। इसके लिए और भी मैं 2-3 बताऊंगा, लेकिन आइए आपको मैं इसमें आ जाएं कि वजादा तो था वाले माजी में, देखें गायब मुज़क्कर में था वजादा, वजादा, वजादू, वजादत। आपने की भी है, इसलिए आपको मैं समझता हूँ कि वो कर रहे होंगे। वजादत बोलते जाइए, वजादता, वजदना, वजदता। अच्छा, आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ना मैंने तशदीद लगाया हुआ है। ये तशदीद कहाँ से आया? नहीं, असल में बात ये क्या कहते हैं उसको, जो किरत का है ना, किरत का असूल वो ये है कि दाल और ते जहाँ आता है तो दोनों में एक जैसा में वद वजत तू, दाल और ते कैसे आता है? तो दाल को पढ़ा नहीं जाता, ते पे तशदीद दे के इसको पढ़ा जाता है वजत्ता। हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नहीं, तकरार की बात नहीं है, वो साउंड जैसे दाल, एक दो और लफ्ज है, जैसे ते है, ते का ना अगर तोय और ते आ रहा है तो उस वक्त में भी मैं आगे चल के हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या ये लफ्ज है। अगर ये आ जाए तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। मतलब कुरान में ऐसे अल्फाज हैं जो लिखे तो हैं पढ़े नहीं जाते। हाँ,
وہ چیز الگ ہے. لیکن یہاں جو یہ جو قاعدہ ہے نا قرت کا قاعدہ ہے کہ وجدا اب لکھتے ہیں وجدتا ہوتا ہے نا, تو یہ وجدتا دونوں میں یہاں پہ زبان لگتی ہے. تو وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتنا وجدتو وجدنا. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کرنے سے آپ کو آسانی سے جائے, ورنہ دال اور تے کی آواز آپ ایک ساتھ نہیں نکال سکتے. یہ ایک رکاوٹ تھی, اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا گیا عربی زبان میں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ ہوا کہ ہم نے بنایا تھا یو جدو کا واو گرا دیا یا جدو کو دیکھیں یہاں ہوا. اب لفظ کتنا ہے, یہ تو مضارع علامت مضارع ہے. یہ کیا ہے, یا جو ہے علامت مضارع. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر فعل جو ہے 3 حرف کا ہوتا ہے. یہاں فعل یہ جو حرف ہے یہ علامت مضارع, باقی کتنے کے 2 حرف ہے. لیکن آپ کو یہ سوچیں گے کہ یہ کہاں, تو اس وقت آپ کے سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہے یہ واؤ, یہ پتہ چلے گا بعد میں آپ کو کہ یہ واؤ اس کا گر گیا بچا جاتا. تو یا جدو یا جدانے, باقی سے میں یا جدو یا جدانے یا جدونا, تاجدو تاجدانے یا جدنا, تاجدو تاجدانے تاجدونا, تاجدینا تاجدانے تاجدنا, آجدو ناجدو. ٹھیک ہے, اس کو میں دیکھوں کہیں وہ استعمال بھی کیا ہے کہیں. جد من وجد, جس چیز کو ڈھونڈو گے تو پاؤ گے. ثنا کے اندر ہے, لیکن وہ تو جو یہ جادت ثنا پڑھتا ہے نا, تو اس میں بھی جدو آتا ہے. یہ اس میں آتا کیا کہتے ہیں سورہ حدید میں. ہاں سورہ حدید, ہاں سورہ حدید میں آتا ہے. میں نے حدید کے بنا لوہا. تو دوسرا اسی کا وہ کیا واوی میں وادارا مانے واؤ زیر, بوجھ اٹھانا. یہ باپ ذرابا سے ہے تو وادارا ذرابا وادارا. یا زیرو یہ تھا جو زارو ہوتا تھا. اگر اصول سے بناتے ہیں مضارع کو تو یہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس میں واوی کو مثال میں واوی کو گرا دیا جاتا ہے, اس لیے یا ضرور. اسی طرح والے جو واؤ لام جیم, یہ 3 حرف سے باپ ذرا سے ذرابا سے. والے جا یہ ہوتا جو رجوع ہوتا ہے, اس کا واؤ چو کر دیا تو یہ رجوع. ٹھیک ہے, یہ میرا خیال کہیں نے استعمال کیا ہوگا. ہاں آئیے یہاں ایک چیز اور پڑھ لیں گے, اس کو پڑھیے آپ. ان الذین کذبوا واستکبروا, ان الذین کیا ہوا, ان مانے بے شک, جو لوگ کذبوا جھٹلاتے ہیں, واستکبروا اور غرور کرتے ہیں, انہا اس سے, لا تفتحوا ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا. یہ پیش ہے نا, یہ مجہور ہے. لا تفتحوا کون کھولے گا یہ نہیں بتا رہے, فاعل نہیں ہے اس کی, نہیں کھولا جائے گا دروازہ. ٹھیک ہے, لہم ان کے لیے ابواب دروازے, سمائے باب السمائے آسمان کے دروازے, ولا یدخلون اور نہیں داخل کیا جائے گا جائیں گے جنت باغوں میں, میں جنت میں. یہاں تک کہ ہاں اچھا, ہم نے کہا تھا یہ جو بنایا تھا ہم نے, یہ بنایا تھا. تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے, حتیٰ یا نجا لکھا ہوا ہے. یہ کیوں لکھا آپ کو کچھ یاد آیا؟ میں اس لیے تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں تاکہ پچھلی چیز بھی یاد آ جائے. یہ جو ہے نا حتیٰ آیا, یہ حتیٰ نے اس کو ناسب کر دیا. سب میں دیکھ
था ना ये सब जो था नासे करने का था, तो हत्या की वजह से ये रजू नहीं हुआ, या रजल जमलू, यानी कि जमालू दाखिल किया जाएगा ऊँट को फिर सिंपल गया कि धागे की जो ना निकालते हैं इससे धागा सुई में से, उससे फिर सम्मेल खयाल, यानी ऊँट को उसमें से निकाला जाए। वह कज़ाल का नक्सल जमीन, और ये हम इसी तरह रॉन्ग डूअर्स वालों को, यही सजा देते मुजरमों को हम ये बदला देते हैं। इस तरह कज़ाल का माने इस तरह बदला देते हैं। ठीक है, राजनाता की ऐसी है कि एक सुई कितनी मुश्किल से धागा डालते हैं, तो कहते हैं जब तक इसमें से ऊँट ना निकले तब तक होने, यानी इसकी एक तरीका है कहने का। नहीं है मतलब कि वो हाँ, ना नहीं, वो इसको नहीं है, निकलेगा। लेकिन इसको कहने का एक मिसाल एक मामला- दी है कि मिसाल दी है, नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन सी बात है हो ही कि नहीं एक सकता। नाके से ना अपन हाँ मतलब धागा बड़े मुश्किल से डाला जाता है। हाँ ठीक है, तो ये एक हमने उसको कर दिया आपको यहाँ पे। अच्छा, बार ऐसा वाव और ऐसे, ठीक है, तो इसमें वाव जो है फे करने पे बार ऐसा, ये हासिबा और यह सबू है। ठीक है, यह सबू, तो वारेसा और वो वाव गिरा दिया, वरना या और ऐसा होता है। जमलू फिर देखो, तो यार जमलू ऐसा फिर से वाव क्या गिर करें, गया। इस्लाम आदाब है। यार आदाब है, ऐसा कभी है ना? होता नहीं ना बेदयानी में, वहाँ देख रहा था। हाँ, यार रसूख है, यार रसूख मैंने बारिश होना, बारिश होता है, ये बारिश होएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये कि एक और जो है वावी का असूल जो है ये है कि अगर ये कलमे पे वाव साकिन हो, ये कलमे का वाव जो है साकिन हो, जो हमें मज़ारे में मिलेगा जब हम ये के बात करेंगे, वाव साकिन हो और माँ कबल जेर हो। माँ कबल माने उससे पहले जो है वो जेर। ठीक है, तो वाव को ये में तब्दील कर देते हैं। ये हमने कोई नई चीज़ नहीं कही, हमने हमेशा ये बताया कि ज़बर जो है वो अलीफ के बराबर है, जेर जो है ये के बराबर, तो यानी ये के मुआफ़िक, पेज जो है वो और पेज जो है वाव के मुआफ़िक। तो एक उसको हर्फ इल्लत को गिरा कर दूसरा हर्फ इल्लत लेके आते हैं, तो वो कहता है वाव साकिन से मा कबल जेर हो, तो वाव को या से तब्दील कर देते हैं। जैसे ये है यू यू सालू, यू सालू, इरसालू। वावी जो है ये साकिन है, इससे कबल क्या है, जेर है। तो हम इसको वाव को जो गिराएंगे तो इसकी जगह हम लगाएंगे या लिए जेर, ये या लगा देंगे, ई सालू, ईसा में पहुँचाना। ठीक है, हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ईसालू, इरसालू के मतलब क्या है उनसे पहुँचाना। पहुँचाना। ठीक है, अब दूसरे आइए मिसाल याई, मुश्किल तो नहीं लग रहा। यानी आसान है सरी, आसान है जी। मिसाल याई जो है जब भी फे कलमे पे या आ जाए और सरासी मुजरद के अबाब में आम तौर पे यानी बाब नसारा और बाब हसाब से इस्तेमाल, दो कम हो गए, बाब नसारा और हसाबा से इस्तेमाल। यानी इसमें जो होता है, जो भी तब्दीली आएगी लिखने में नज़र नहीं आती ऐसी, लेकिन जब अदायगी करते हैं तो नज़र आ, यानी महसूस होता है कोई तब्दीली की गई है। जैसे इसमें ये लहजा जो है बदल जाता है, जैसे ये सीन रे जराबा फैमिली से यासारा, यासारा मैंने आसान, इसने आसान किया, ठीक है। यासारा हम लोग ने रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, उसूर माने मुश्किल, तो रब्बी यस्सिर आसान फरमा, वला तुअस्सिर और मुश्किल ना फरमा, वतम्मिम बिल खैर, इसका खात्मा बेहतरी भी कर। तो यस्सरा जो ये सीन रे और फे करने पे ये है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विचार जाई। और ये किस बात से, जराबा बात से, तो इसका होगा यासारा जय सिरू। इसमें देखने में कोई इसमें वो नहीं की गई है,
لیکن ادائیگی میں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ شروع مشکل ہو گئی. آسان ہونا. یہ شروع یہی سے رو آسان ہونا. یہ شروع ادائیگی ہو جاتی ہے. اب جھٹکا یہ نہیں لکھا پڑتا. نا آسان ہونا. آسان ہوتا. یہ شروع کو مانے آسان ہونا. ہوتا ہے یا آسان ہوگا. دو ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے استعمال. اگر مثال جائز ساکن سے ما خبر پیش یعنی جیسے یہ تو کیا تھا تو واؤ کا تبدیل ہو یہ تو زیر تھا نا یہ ما خبر زیر تھا تو اگر اس سے پہلے پیش ہو تو جائی کو واؤ سے بدل دیتے ہیں. جیسے جو ایک کہنا ہوں یہ تیسرا سیگا ہوگا اس کا ہمارے چھٹا سیگا مونس کا غائب کا. ٹھیک ہے جو ایک کھنو تو یہاں پہ پیش ہے اور اس کو جو کیا جائے گا اس کو گرا دیا جائے گا تو پیش کے حساب سے واؤ آ جائے گا. واؤ آ جائے گا. ٹھیک ہے یو کینو یہ یو کینو مانے یقین کرنا کسی چیز یو کینو. نکل کرنا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں کوئی مشکل لگا تو بتا دیں تاکہ اس کو میں دہراؤں. یہ کلیئر ہے سارا. یہ فے کلمہ تو واوی اور فے کلمہ تو یائی ہو. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم واوی کا جو ہے واو جو ہے اس میں مضارع میں گرا دیتے ہیں اور ماضی فعل ماضی میں وہ ایز اٹ از ہوتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے. تو اب ایک اور چیز جو ہے آپ آئیے یہاں پہ ہم نے کافی کچھ کر لیا تو یہ پڑھیں للہ. للہ کے معنی کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ملک بادشاہ بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین اور کی. زمین کی. یخلق پیدا کرتا وہ ہے پیدا کرتا ہے ما یشاء جس کو چاہے. ما یشاؤ جو جو وہ چاہتا جو ہے. وہ چاہتا ہے. یا حبو اور دیتا ہے دیتا جی. لمن یشاؤ جس کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یا حقول میں یا حبو اور وہ دیتا ہے عطا کرتا ہے لمن یشاؤ اناسا اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے عورتیں یعنی مونس. اناسا فیمیل کیا ہوتا ہے فیمیل. نساء. ہم کیا کہیں گے اردو میں بیٹی. بیٹی بیٹی. بیٹی. ٹھیک ہے. عطا کرتا بیٹی. یا ہم اور دیتے ہیں لمن یشاؤ جس کو چاہتے ہیں ذکورو یعنی میل لڑکا. بیٹا. ہاں. لڑکا کہو یا لڑکی کہو یہ بھی کہہ سکتے ہو. اناسا انسا. ہاں اناسا نہیں لڑکا لڑکی کہتے ہیں یعنی بیٹی. ذکرہ. یعنی جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اس میں کسی کا وہ نہیں. یہ کتنی بڑی بات کی ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ پہ کتنی لوگوں کے گھروں میں طلاق ہو جاتے ہیں اس بات میں کہ میرے گھر میں بیٹی ہوگی. بھائی اس میں وہ دینے والا تو اللہ ہے. اللہ وہ بیٹی دے یا بیٹا دے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دے جس کو چاہتا ہے بیٹی دے اس کے حق نہیں کرے. ٹھیک ہے. ذرا سے دوسرے ہاتھ میں ہے. یہ پڑھ لی. تیسری والی پڑھیں گے. تیسری بڑے وہ کہنا اور اگر وہ تھا رجم جو رسو یعنی وارث کرنا. وارث کہتا کلالہ تم اور مراتم. کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی وارث نہ ہو پیچھے. تو اس عورت کیا وہ لہو اخن اب اس کا ایک بھائی ہے او یا اختن یا ایک بہن ہے. فالکل تو ہر ایک کے لیے کل واحد ہر کے لیے منہما اس میں سے سدس چھٹا حصہ ہے. سدس چھٹا حصے کو ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا ایک اور آ گیا. وا مانے اور لا مانے تاجرو اٹھاتا ہے. واضح یہاں رکھو تو اٹھانے والا
ये वादरे तो न तो उठाने वाला, खाने वाली, तो कोई नहीं उठाता, उठाने वाली विजरा बोझ, टोकरा दूसरे का। आगे और कुछ है तो यहाँ में तो ये ताज़ेरों को पढ़ना था, या यहाँ वाव था ना, ये असल में वजारा था, मेरे शायद नीचे लिखते हैं इसमें, वो पहले वाला है ये वाला। वो जो सुना उठाना वजारा याजेरू, तो याजेरू का ताज़ारे हो गया। ठीक है, एक और चीज़ आप देखिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लफ्ज़ जो है वजना, वजना में वाव गिर गया, याजेनू मजारा हो गया, वजना में बोझ उठाया है, याजेनू उठाता है, ये उठाएगा। मज़दर क्या हुआ? वज़नू, वज़नुन, ये क्या मज़दर है? इसके मानी क्या होता है? तोलना। ठीक है, इसको फाइल क्या होगा? इस वजन पे होगा वाव, बा की जगह वाव, अलिफ, एन के नीचे ये, और ये यहाँ पेश इसलिए कि ये अल लगा हुआ है इसलिए, वरना वज़नुन। तो इसमें फाइल क्या होगा? वज़नुन। ये के नीचे यानी एन के नीचे क्या होगा? ज़ेर होगा, वज़नुन। और इसका अम्र जो बनाएंगे क्या करेंगे? ये तेज मैं आपसे बनवाऊंगा इसलिए कि आपको याद आ जाएगा कि कैसे बनाना। क्या करेंगे? पहले ये हटा देंगे, पहले से हटा दिया, तो चलो पहले ही हटा दिया। अब क्या करें? अब सब लगाएंगे। फतुल्ला, ठीक है, पढ़ा जाता है, हाँ पढ़ा पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है तो ठीक है, यही हो गया हमारा। ये कहा था ना, पढ़ा जाता है तो नहीं पढ़ा जाता तो हमें अलिफ लगाते और फिर उस पर हरकत कौन सी देते? जो उसके एंड करने में हरकत आती। ठीक है, तो ये जिन हो गया। और ला, अभी हमने ला ताजिल, ये मत उठाओ, ला ताजिल मत उठाओ, दोनों हुक्म है, एक मना करने का हुक्म है और एक जो करने का हुक्म। करने का हुक्म है। अब ये आप आराम से करें, पढ़ते जाएं जरा, देखते जरा। वजदा, वजदा, यजिदु, यजिदु, वजदानुन, वजदानुन, ये इसका क्या मज़दर है? मज़दर जो है हमेशा बाप के विजदान मायने है ये पाना, पाना, एक नुक्ता होगा। एक बात पानी पानी इसमें पाना। अच्छा, तो इसको फाइल क्या होगा? वाजिदू। वाजिदू। ये देखिए, जेर इसके नीचे एंड करने पे, इसके भी एंड करने पे वाजिदू, ये इसमें फाइल हुआ, यानी कि पाने वाला। ठीक है, जिद, जिद इसी तरह हमने बनाया जैसे आपने जिद बनाया, ला तजिद, ला तजिद। ठीक है, फिर आ जाए वाला था, वाला था उसने पैदा किया, यलिदू वो पैदा करता है या करेगा, इसका जो मज़दर बनेगा वलदातुम, ये मज़दर है। इसके लिए सबके वज़न होते हैं, इसकी ज़रूरी है कि एक जैसा होगा, इसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, मफ़ाइला के वज़न पे, कुछ फेलून के वज़न पे, एक जैसे गफूरून है वो अलग एक वज़न पे। तो वलदातुम के माने क्या है? जन्ना, जन्ना, जन्ना। ठीक है, तो इसका इसमें फाइल क्या होगा? वाले तुम, ये देखिए जेर है एंड करने पे, एंड करने पे जेर है ना, यहाँ पर जेर है, वाले तुम। और इसका लिद यानी क्या? पैदा, तू पैदा कर, लिद, ला तलिद, तू पैदा मत कर। आपको कुछ लग रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? लम यलिद, आपको ये आइंदा ऐसे पढ़ाया जाएगा। लम जब यलिद वलम यूलद, हाँ, जैसे लम यलिद, लम यलिद, वलम ना वो यूलद, पैदा करता ना वो पैदा किया गया। लम यलिद, वलम ना वो पैदा किया, ना वो पैदा किया ना वो पैदा किया गया। करता है ना किया गया। यूलिद है ना, हाँ, यूलद, वो मजबूत में से आया, ना वो पैदा किया गया। अच्छा, आप हो जाए वादा, यानी तो वादन वादन ये मजदर हो गया, इसके माने वादा करना। और इसका इसमें फाइल क्या होगा? वाइदुन, वाइदुन, एंड के नीचे देर। ठीक है, इद यानी तू वायदा कर, ला तइद तू वायदा मत कर। ठीक है, वाज माने नसीहत करना, वादा उसने नसीहत की,
युइज़ु वो नसीहत करता है या करेगा, वाइज़ वाजुन यानी मज़दर है नसीहत करना। करना। असल में पढ़ने से अलग होता है, पढ़ा नहीं है। नसीहत करना अलग होता है, ये करना। कहा जा रहा है नसीहत करना। वाइज़ुन नसीहत करने वाला, कहते हैं ना वाइज बना पड़ता है, बड़ा नसीहत करने वाला बना है। हम लोग उर्दू में वाइज इस्तेमाल करते हैं ना भाई, कि फलाने वाइज आ गए, वाइज माने सुनते हैं। इस तू नसीहत कर, ला ताइज तू नसीहत मत कर। आखिर वाला वसला माने किसी चीज़ को मिलाने को थे। मौसिल जो हम पढ़ते थे मैकेनिक में, उर्दू में जिसने पढ़ा हो तो वो जानता है, मौसिल जो मिलाने वाला होता है इसको मौसिल कहते हैं। वसल माने मिलाना, तो वसला उसने मिलाया, यसलू वो मिलाता है, मिलाया। और इसका मज़दर जो होगा वसलुन, मिलना। ठीक है। वर्बल नाउन इंग्लिश में कहते हैं मज़दर को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। मज़दर को क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। तो वसलुन इसके माने होगा मिलना। वासिलुन वासिलुन इसमें फाइल हुआ मिलाने वाला, ठीक है। सिल तू मिला, ला तसिल तू मत मिला। आपने देखा कि इसमें इसके करने से ये है कि अब आइंदा जो है हमारी ये जो है उसमें तमाम चीज़ें लाएंगे। हम इसी तरह कहेंगे माजी, मज़ारा, मज़दर, मानी, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल भी करेंगे। अमर नहीं करूँगा मैं। अमर का बनाने का तरीका आपको मालूम है, चाहे वो ना बात सलासी मजीद फी से हो या सलासी मुजरद से हो, दोनों का तरीक़ेकार एक ही है, आपको ना पता है उस तरीके का असर है। और नहीं का तो बस ये है कि आप अपना सेकंड उसका लेके आएंगे और सिर्फ ला लगाएंगे, बाकी जो लाम कलमे पे सुकून रखेंगे बस।